ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک صاحب۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہی بتا دیجئے، ڈر نہیں لگا آپ لوگوں کو؟ کیونکہ ابھی ایک جو اس سے پہلے والے وزیر اعظم تھے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ روس کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا تھا، روس کا دورہ کیا تھا، اس لیے امریکہ نے انہیں ہٹا دیا اس پاداش میں۔ تو آپ لوگوں کو تو ڈرنا چاہیے تھا، آپ کی تو ویسے ہی اتنی کمزور حکومت ہے۔ دیکھیے، ان وزیر اعظم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے فرانس کے صدر نے ٹیلی فون کیا اور میں کیونکہ مصروف تھا تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی میں تمہارا فون نہیں لے سکتا۔ تو ان کی کیا بات ہے؟ ان نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، امریکہ والے مجھے فون نہیں کرتے، ایک ٹیلی فون نہیں آیا، بلکہ یہاں سے ایک وہ اپنے ایڈوائزر کو بھی بھیجا جو وہاں جا کے گلہ کرتے رہے کہ ہمارے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بھائی ایک فون ہی کر ڈالیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے وزیر اعظم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ دیکھیں مودی کیسا آدمی ہے، میں اس کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں اٹھاتا۔ تو اب آپ ان کی کیا بات کریں؟ کوئی ان کا فون نہیں اٹھاتا، کوئی ان کو فون نہیں کرتا، کسی کو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آ رہا تھا، مجھے ایک اور دوست ملک نے روک لیا۔ اس وجہ سے ان کی باتیں تو چھوڑ ہی دیں۔ مگر آن اے سیریس نوٹ، آئی تھنک اگر آپ بین الاقوامی سطح پہ آپ کے جتنے بھی معاہدے ہیں ان کا پاس کریں اور اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں جیسا کہ ہم نے رکھا ہے، رکھنے کی کوشش کی ہے، تو پھر دنیا بھی آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کا ایک پیغام تھا، وائٹ ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہمیں پاکستان کے روسی تیل لینے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پورے جو جتنے بھی ہمارے معاہدے ہیں پوری دنیا کے ساتھ ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ ہم تو صرف اپنے بچوں کے لیے اگر ہمیں کہیں سے سستا تیل ملتا ہے تو اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لے کر آتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسا جھگڑا بگڑا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ رائٹ ملک صاحب، تو یہی ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی ملک صاحب، ابھی جو پہلا تیل آیا ہے وہ 45,000 ٹن خام تیل پہنچا ہے پاکستان، تو کیا یہ سلسلہ بتائیں کب تک چلے گا؟ کتنے کا معاہدہ ہوا ہے؟ کتنا ٹن تیل ابھی آنا ہے؟ دیکھیے 1,00,000 ٹن کا ہمارا ان سے معاہدہ ہے، وہ 2 شپس میں آئے گا۔ یہ پہلا جہاز جو ہے یہ لنگر انداز ہو چکا ہے اور آج اس کی ترسیل شروع ہو جائے گی، جس کا کل رات وزیر اعظم نے اعلان بھی کیا تھا، اور میرے خیال میں یہ 3 دن لگیں گے شاید اس کو پورے جہاز کو آف لوڈ کرتے۔ پھر یہ جہاز نکل جائے گا اور ہمارا دوسرا جہاز جو ہے وہ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آ جائے گا، اس میں 60-65 ہزار ٹن تیل ہوگا۔ تو اس طرح امپیکٹ کیا ہوگا اب ملک صاحب؟ کیونکہ عوام ظاہر ہے اسی انتظار میں ہے کہ اس کا اثر ان کی جیب پر بھی پڑے، ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو، ان کو فائدہ کیا ان کو کچھ ریلیف ملے، کیونکہ وہ اب تو ریلیف کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ یہ آ گیا، دوسری شپمنٹ بھی آ جائے گی، اس کا امپیکٹ ہماری لوکل مارکیٹ میں کب تک نظر آئے گا اور کتنا نظر آئے گا؟ خاص طور پہ عام صارف کے لیے۔ جی میرے خیال میں ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جب ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے، جو تقریباً 1/3 جو ہمارا خام تیل ہے یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ آنا چاہیے روس سے، تو تقریباً 18 سے 20% تیل کی جو کمپلیٹ پروڈکشن ہوتی ہے پاکستان میں یا جو ضرورت ہوتی ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ ہوگی۔ اس کا ایگزیکٹ کتنا امپیکٹ آئے گا وہ میں اس وجہ سے ذکر نہیں کر رہا کہ وہ بیک کیلکولیشن کر کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس ڈیل کی جو ہماری کمرشل کانٹریکٹ ہے وہ کیا ہے، اور وی آر ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو ڈسکلوز دا کمرشل ریلیشن شپ۔ اس وجہ سے میں تھوڑا سا کترا رہا ہوں، لیکن اس کا بہت بڑا فرق آئے گا اور لوگوں کی جیب تک پہنچے گا، مگر اس کا جو ریئل امپیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا جب ایک تسلسل کے ساتھ یہ جہاز آئیں گے اور ہم تقریباً 1/3 اپنا خام تیل روس سے لینا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کب تک اچیو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ یہ میرے خیال میں جی بس اب یہ پہلی شپمنٹ آئی ہے، اس سے ہم پروڈکشن میں لے کر آئیں گے۔ ابھی تک اس سے پہلے اب میں تکنیکی امور میں جاؤں گا تو آپ کا پروگرام بور ہو جائے گا، کل سے کوئی دیکھنے نہیں آئے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کیمسٹری وغیرہ جو ہے ہم ایڈجسٹ کر چکے ہیں، سارا کچھ طے ہو چکا ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ چلے گا، ہماری پروڈکشن باہر آئے گی، ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کتنی پٹرول، کتنا ڈیزل، کتنا فرنس آئل اس خام تیل سے نکلے گا، پھر ایک لانگ ٹرم
तसलसल के साथ तेल आना शुरू हो जाएगा। तो मैं मेरे ख्याल में 1-1.5 महीने के अंदर तसलसल से तेल जो सर आवाम जो है ना ये तकनीकी मामला भी बड़ा अच्छा समझते हैं, तो बोर नहीं होते, वो देखते हैं। उनको कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा हो तो वो समझ भी जाते हैं। खैर आप ये बताएं मलिक साहब कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा उनके लफ्ज़ हैं कि रूसी तेल की आमद को उन्होंने पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ करार दिया है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मुआहदे और मज़ीद हम देखेंगे होंगे इन द फ्यूचर? देखिए, पहले तो मैं आपको एक हायर लेवल पे बताना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि हमारा एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। ये इससे पहले की हुकूमत में आपने देखा ना, जो वो एक पोलराइज, जिस तरह मुल्क के अंदर सियासत को उन्होंने पोलराइज़ कर दिया था, इंतहा पसंदी दिखा रहे थे, बैनुल अक़वामी सतह पर भी वो यही कर रहे थे। ट्वीट्स के ज़रिए तो वो अपनी खारजा पॉलिसी चला रहे थे, कभी अमरीका से लड़ाई, कभी अमरीका दोस्त। एक दिन आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमें गारत कर दिया, अमेरिका ने हमारे आइन को पामाल किया, अमेरिका ने हमारी जमहूरी हुकूमत उल्टा दी। दूसरे दिन फिर आपने उन्हीं को आप ही लोगों ने दिखाया गिड़गिड़ाते हुए, वो उनकी जो कांग्रेस वुमन हैं उनको कह रहे थे कि आप जीती रहें, आपके भाग लगे रहें, आपका ख़त बड़ी दूर तक जाएगा, ज़रा एक चिट्ठी हमारे हक़ में लिख दें। फिर जाके वो एक साहब जो डेविड फैंटन, जो तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी तहरीक चला रहे हैं, उनको लॉबिस्ट अपना बना दिया, मुकर्रर कर दिया। फिर बोला मैंने थोड़ी लगाया था, मुझे तो पता ही नहीं था ये कौन था, किसी और ने लगा दिया। देखें, ऐसे खारजा पॉलिसी नहीं चलती। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी ये है कि हम हर एक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। देखिए, अभी हमने अज़रबैजान से एक मुआहिदा किया है, एक कार्गो हर महीने वो हमें देंगे LNG का कम कीमत पे, जो भी बैनुल अक़वामी कीमत होगी उससे कम कीमत पे देंगे, और हमारी मर्ज़ी है कि हम वो ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हमें भेज दिया है, अब हमारी काबीना के पास है, इंशाल्लाह साइन हो जाएगा। इसी तरह तुर्कमानिस्तान के साथ आपने परसों चौथ देखा कि हमने एक बड़ा मुआहिदा किया है जिसमें टापी को रीइन्विगरेट किया गया है, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, वो कैसे हम उसको डी रिस्क करेंगे, वो तमाम चीज़ें तय हो गई हैं। उनके वज़रा यहाँ आए, हमने साइन किए, सेरेमनी हुई और वो गए। इसी तरह बिल्कुल अमेरिका के साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 1/3 हमारी गैस जो है वो चली जाती है फर्टिलाइजर्स में। हम कोशिश ये कर रहे हैं, अमेरिका के पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हवा के ज़रिए, सूरज के ज़रिए, यानी तवानाई के जो शमसी तवानाई और पंचक्की की जो तवानाई है उसके ज़रिए, और पानी के ज़रिए, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए हम ग्रीन अमोनिया बनाएंगे, यानी उसमें गैस नहीं इस्तेमाल होगी। ये हमारी बातचीत चल रही है उनसे ये भी बातचीत चल रही है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आएंगे और सरमायाकारी होगी अमेरिका से। फिर हमारी एक GCC के मुल्क के साथ इस वक्त बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह 90 से 120 दिन के अंदर $10 बिलियन यानी 10,000 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का मुआहिदा हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर रिफाइनरी के अंदर एक बैनुल अक़वामी सतह की बेहतरीन रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाई जाएगी, और ये सब अभी होगा अगले 60-90 दिन में। उसके अलावा हम यूरोप से ये बात कर रहे हैं कि जो तुर्कमानिस्तान से हम गैस लेकर आएंगे, आप यहाँ पे लिक्विफिकेशन के प्लांट लगा लेंगे। जो RLNG बनती है वो प्लांट आप गवादर में लगा लें, कराची में लगा लें, हम तुर्कमानिस्तान से गैस लाएंगे। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और यहाँ से LNG ले जाएं, तो पाकिस्तान एक तरह से इम्पोर्टर के बजाय एनर्जी का एक्सपोर्टर बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए, हम किसके साथ हैं? हम रूस के साथ हैं, हम तुर्कमानिस्तान के साथ हैं, हम अज़रबैजान के साथ हैं, हम यूरोप के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमें जहाँ से बेहतर एक डील मिलती है, बेहतर डील स्ट्रक्चर होती है, हम वहाँ पे जाके एक बैलेंस पॉलिसी के ज़रिए बगैर होपफुली अल्टीमेटली इसके फ़वाइद पहुँचे। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक हकीकत है कि इस तरह के जो मुआहदे होते हैं उनकी इम्प्लिकेशंस भी होती हैं, किसी ब्लॉक में जाने या ना जाने का तासुर भी आता है। सो उन मामलात को आपको लगता है कि हम बखूबी अभी तक निभा रहे हैं? एक तो ये, दूसरा ये कि हमारे पास ये जो रूसी तेल आया है, या और आपने इरादे बताए हैं तेल लेने के, हमारे पास ये रिफ़ाइन करने की सलाहियतें मौजूद हैं? मतलब वी हैव एम्पल कैपेसिटी एंड द टेक्नोलॉजी टू रिफाइन दिस ऑयल? देखिए, पहला सवाल का तो जवाब आपके सवाल में ही है, आपके इब्तदाइये में है। आपने इब्तदाइये में ही बता दिया कि रूस का तेल आ गया और अमेरिका नाराज़ नहीं हुआ।
तो आप बताइए ना मुझे कि अब से कुछ चंद एक साल पहले तो कह रहे थे कि रूस का तेल की बात की और हमारी हुकूमत उल्टा दी। आज रूस का तेल पोर्ट पे लग गया है, आज से उसकी तरसील शुरू हो जाएगी, हफ्ते भर में वो मार्केट में आ जाएगा। तो किसी ने हुकूमत नहीं उल्टाई है, कोई नाराज़ नहीं हुआ है। बल्कि मैंने आपको पहले कहा, अमेरिका ने ऐलान किया कि हमें कोई एतराज़ नहीं। इसकी वजह यह है कि जब आप सियासत अजीब व गरीब किस्म की करें तो आपको जवाबी कार्रवाई मिलती है। ये थोड़ा सी मैंने अनफेयर बात कर दी। बैनुल अक़वामी सतह पे जो जियो पॉलिटिक्स होती है वो एक हकीकत है, लेकिन हमारा काम है ना, ये हमारी नौकरी है कि उस जियो पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए सबसे ज़्यादा फ़ायदा जहां पे मिल रहा है वहां पर लेकर जाएं, और यही हम कर रहे हैं। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि देखिए, हमारे पास जो PRL हमारी एक कंपनी है बड़ी, जो अभी तेल प्रोसेस करना शुरू करेगी, उसका ये ख्याल है कि वो 30 से 35% के करीब तेल जो है रूस से आया हुआ प्रोसेस कर पाएगी। इसीलिए पहले ये 2 शिप्स हम इस्तेमाल करेंगे और फिर एक तसलसल के साथ तेल लेना शुरू करेंगे। दूसरी हमारी कंपनी है पार्को का ख्याल है कि वो 25 से 30% तेल जो है वो इस्तेमाल कर पाएगी। बाकी हमारी कंपनियां जो हैं, एक हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। उनका ख्याल है वो 80% तक रूसी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने तो एक दिन कहा कि हम पहले कर चुके हुए हैं। हम बड़ा पूछते रहे, भाई कैसे कर चुके हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम पहले कर चुके हुए हैं बहुत पुराने ज़माने में इसे इस्तेमाल। तो अगर वो 80% ले सकते हैं, पार्को 25 से 30% ले सकती है, PRL 30 से 35% ले सकती है, तो सिर्फ एक कंपनी रह जाती है ARL, जो पाकिस्तानी जो हमारा क्रूड है, खाम तेल है, उस पर प्रोसेसिंग करती है। वो शायद ना ले, बाकी तमाम कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज लेना शुरू हो जाएंगी। तो हमारे पास कैपेसिटी भी है, हमारी जो मशीनरी है वो उसको प्रोसेस भी कर पाएगी। और ये जो 1 लाख टन लाया गया है, ये इन तमाम चीज़ों को जो इस वक्त लैब की सतह के ऊपर तय हो चुके हैं, केमिस्ट्री की बुनियाद पे तय हो चुके हैं, अब इनको हकीकत में प्रोसेस करके उसका रिजल्ट जो है वो सामने रख के फिर इंशाल्लाह से तेल मंगवाना। मलिक साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वंस बिटन ट्वाइस शाय हो चुके हैं ना। अब ऐसी खुशखबरी आती है तो थोड़े से हम स्केप्टिकल भी हो जाते हैं कि कितनी देर तक रहेगी, क्या ये होगा भी नहीं होगा। सो वी आर गोइंग टू टेक दिस पॉजिटिवली।